Hello? 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 Okay, sorry, I was just checking if it's working. We will start our session at sharp 4 p.m. Assalamu alaikum everyone.
This is Memuna Kakar, female head YHP Balochistan. The basic motto of YHP is to empower our youngsters, to provide them a platform where they can show their hidden talent and skills to the world. YHP will definitely help all the youngsters to groom up and polish their skills. It is an open platform for everyone. You can join all over the country. So coming to the today's topic, which is career counseling. First, I will just briefly describe what career is. It is a path which can an individual visualize for himself. The most basic and main factor for career buildings are personality, characteristics, and career sensitivity. So, today we will discuss shortly about career counseling. Before the start, I will quote something. It's beautiful when a career and a passion comes together. So, our guest, who is a motivational speaker, trainer of trainers, and a life coach, Honorable Sir Mr. Nasir Ahmed, we are glad that you join us today, sir. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Hello? Sorry, sir, I can't hear you. Hello? Yeah. Yes, sir. Yeah. Am I audible? Yeah. Thank you. Yes, sir, I can hear you now, sir. Thank you. You can start, sir. You can have some short introduction of yourself. Yeah. I'm Nasir Ahmed. I'm working as a trainer of trainers for school leadership development program from British Council. I'm also a trainer of from British Council from TLE project, Punjab Education and English Language Initiative from British Council. And I'm also as a lead trainer from British Council for Leadership Development Program, Pakistan. And nowadays, I'm working as a principal at Government High School, Yazwan, Bahawalpur. Really, sir, great to hear this. First thing I would like to ask you, sir, why it is important to do career counseling? Yeah, you ask a very good question. Here I will discuss all these things in Urdu language because most of the people who are listening us, they may have good command over Urdu language, but Yes. they might not understand English. So, जैसे आपने Okay, क्वेश्चन किया sir. कि कैरियर काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान के बच्चे को इस दुनिया में भेजती है तो अपने माइंड के अंदर जी डिफरेंट जी पर्सनैलिटीज को लेके आता है। एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसके माइंड में 13 किस्म की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक बच्चे के माइंड के अंदर एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, एक प्रोफेसर होता है, एक लेक्चरर होता है और एक झाड़ू देने वाला भी होता है और एक चाय पकड़ाने वाला भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी हिडन पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करता है, अपने अपने कैसे परसू करता है अपने फ्यूचर को कि कैसे मैं आगे बढ़ के क्या बनना चाहता हूँ। और ये डिपेंड करता है एक्सपोजर के ऊपर, उसके हिडन पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के ऊपर। अगर आप उस बच्चे के माइंड को डॉक्टर को उठाएंगे तो आने वाले वक्त में डॉक्टर बनेगा। अगर आप इंजीनियर को उठाएंगे तो इंजीनियर बनेगा। अगर आप साइंटिस्ट को उठाएंगे तो साइंटिस्ट बनेगा। अगर आप किसी प्रोफेसर को उठाएंगे तो प्रोफेसर बनेगा। अगर किसी प्लेयर को उठाएंगे, जैसी भी पर्सनैलिटी को आप उठाएंगे आने वाले वक्त में वैसा बनेगा। अगर खुदा ना खास्ता उसको एक्सपोजर ऐसा मिले, उसका हिडन पोटेंशियल जो है उसके अंदर के किसी झाड़ू देने वाले को उठाएंगे तो वो झाड़ू देने वाला नौकर बनेगा। डिपेंड करता है एक्सपोजर के ऊपर, डिपेंड करता है मोटिवेशन के ऊपर, डिपेंड करता है अपने अंदर छुपे हुए इंसान की रिकग्निशन के ऊपर। ये और इसके साथ साथ दूसरी जो बात डिस्कस की गई कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कैरियर काउंसलिंग। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज आप अपने साथ इस दुनिया में लेके आते हैं। इंसान का बच्चा इस दुनिया में लेके आता है, अब उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको अपनी उस पर्सनैलिटी को रिकग्नाइज करने की जरूरत है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। मोस्टली जो हमारे स्पेशली यूथ है, अगर हम उसकी बात करें, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उनको काउंसलिंग का मौका ही नहीं मिलता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता।
वो कभी जिसको देखते हैं वैसे बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी एक्टर को देखा तो वो अपने आप में एक एक्टर देखना शुरू कर देते हैं। अगर किसी प्लेयर को देखा तो अपने आप में एक प्लेयर को तलाश करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी डॉक्टर को देखा तो अपने अंदर छुपे हुए डॉक्टर को तलाश करना शुरू कर देते हैं। ये चीजें अगर किसी कॉम्पिटेंट बंदे के साथ, किसी साइकेट्रिक के साथ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ डिस्कस ना की जाए तो ये चीजें पहचानना, जानना बहुत मुश्किल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसकी साइकिल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसकी एप्टीट्यूड को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ये बच्चा आने वाले वक्त में क्या बन सकता है। साइकेट्रिक उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, टीचर्स उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इस बच्चे में क्या छुपा हुआ है, आने वाले वक्त में बड़े लेवल पे क्या परफॉर्म कर सकता है। उसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करें कि ये आने वाले वक्त में रिसर्चर्स कर सकता है, ये साइंटिस्ट बन सकता है, तो उस डायरेक्शन पे उसको लगा देते हैं। अगर किसी बच्चे के एप्टीट्यूड को चेक करें, रुझान को, इंक्लाइनेशन देखें कि ये बच्चे का किस साइड पे जा रहा है, अगर वो बच्चा अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, दुनिया में आने वाले वक्त में रोनाल्डो बन सकता है या और बड़ा वसीम अकरम या वकार यूनुस बन सकता है, तो वो उस डायरेक्शन पे उसको लगाते हैं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा एक अलमिया है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा अब बच्चे के टैलेंट के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स को एक फोबिया हो चुका है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आने वाले वक्त में 2-3 प्रोफेशन है जो उनके माइंड में बैठे हुए हैं, या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या ब्यूरोक्रेट बनेगा, ये इस साइड पे जाएगा। इन चीजों की तरफ ही वो बच्चे को फोकस कर रहे होते हैं। वो उनकी फर्स्ट डे से यही एफर्ट होती है और बच्चे को भी उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये बनता है कि आने वाले वक्त में कुछ नहीं बन पाता। कि डॉक्टर को इंजीनियर बनाया जाता है, इंजीनियर को साइंटिस्ट बनाया जाता है, प्रोफेसर को किसी और साइड पे लगाया जाता है, प्लेयर को किसी और साइड पे लगाया जाता है। उसका प्रॉब्लम ये बनता है कि आने वाले वक्त में वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो लिहाजा कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चे के एप्टीट्यूड को चेक होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि ये बच्चा आने वाले वक्त में क्या बन सकता है, इसमें क्या सलाहियतें हैं और किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकता है। जी। हेलो सर। जी जी, डिस्कशन को मैंने वाइंड अप किया। जी, आई कैन हियर यू। यस सर, आप कंटिन्यू करें। जी, कंटिन्यू हो गया, कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आप नेक्स्ट की बात पूछिए। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जो कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हिडन टैलेंट है वो क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों गुड। से पूछो तो उनमें टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे तो जी हमें तो कुछ करना ही नहीं आता, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, बड़ी अच्छी बात आपने की। बिल्कुल मेन चीज है आपने हिडन पोटेंशियल को जानना। अक्सर बच्चों को यही पता नहीं चलता कि मैं किस एप्टीट्यूड के साथ इस दुनिया के अंदर आया, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या छुपी हुई हैं। मैं अक्सर अपनी डिस्कशन में ये कहता होता हूं कि आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। आप सबसे बड़ा कर सकते हैं अगर आप सबसे बड़ा सोच सकते हैं। इस सोच के साथ साथ हमने देखना है कि मेरे साथ अल्लाह ताला की जात ने कौन सा हिडन टैलेंट मुझे दे के भेजा है, मेरे अंदर कौन सी सलाहियत को छुपा के भेजा है, मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ताला की जात ने हमें इतनी ताकत दे के भेजा होता है, इतनी ताकत दे के भेजा होता है कि अगर हमें अपनी ताकत का, उस कैपेबिलिटीज का, उन एबिलिटीज का अंदाजा हो जाए तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए। हम अक्सर हमारे जो यूथ है वो अपने हिडन टैलेंट को पहचानने में नाकाम हो चुकी है। अब एक आपने जैसे क्वेश्चन किया, आप कैसे जाने, मैं अपने आप को कैसे जानूं, एक बच्चा अपने आप को कैसे जाने, एक जवान, एक लड़की, एक लड़का, एक यूथ जो यंग जनरेशन से बिलोंग करने वाला कोई भी पार्टिसिपेंट है, तो वो अपने कैसे जाने कि अल्लाह ताला की जात ने मुझे किस टैलेंट के साथ भेजा है। अक्सर हम दो तरह से काम हम करते हैं। कुछ काम को हम कर रहे होते हैं तो उन काम से हमें उकताहट फील होती है, हम हेडेक फील करते हैं, हम उसको डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पेन फील करते हैं। लेकिन कुछ काम लाइफ में हम ऐसे भी करते हैं जिनको करने के दौरान हमें वक्त के गुजरने का एहसास खत्म हो जाता है। हमें गर्मी और सर्दी,
हमें मौसम के जो असरात हैं वो हम पे असरअंदाज नहीं होते, हमें पता नहीं चल रहा होता कि मौसम कैसा है, ज्यादा सर्दी है या ज्यादा गर्मी है, वक्त के गुजरने का पता नहीं चल रहा होता, खाना हम अपना भूल चुके होते हैं। ऐसा काम जिसको करते हुए आपको वक्त के गुजरने का एहसास ना हो, ऐसा काम जिसको करते हुए कोई भी मौसम, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, आप पे इम्पैक्ट ना छोड़े, वही आपका टैलेंट है। मैं आपके सामने एग्जांपल कोट करता हूं। हम बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, वो जब एक बड़े लेवल पे जाके परफॉर्म करते हैं, इससे पहले एक प्रोसेस से वो गुजरते हैं। वो एक अपने उस लेते हैं एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। जब एक प्लेयर अपनी प्रैक्टिस सेशन में होता है, शदीद गर्मी के अंदर हम देखते हैं अक्सर प्लेयर्स को प्रैक्टिस सेशन में होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैच जारी होता है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्चुअल सियाना बंदा आके उनको कहता है कि सर इतनी शदीद गर्मी, बीमार होना है आपने, रंग काला हो जाएगा आपका। वो कहता होने दो, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो इस काम से मुझे इंटरटेनमेंट का ये सोर्स बन रहा है। तो वो काम वो उसके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है। तो वो दिन रात सर्दी गर्मी शदीद, चाहे धूप हो, टेम्परेचर चाहे 47 डिग्री तक भी चला जाए, लेकिन वो प्लेयर कभी अपना मैच मिस नहीं करता। और फिर वो इसी तरह परफॉर्म करता करता आगे जाके कभी शाहिद अफरीदी बन जाता है, और कभी वसीम अकरम बन जाता है, तो कभी क्रिस गेल बन जाता है, तो कभी इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हैं। तो ऐसा काम मैं अपनी यूथ को बताना चाहता हूं कि ऐसा काम जिसको करते हुए आपको वक्त के गुजरने का एहसास खत्म हो जाए, आप पे मौसमियाती असरात जो हैं, गर्मी हो सर्दी हो आंधी हो तूफान हो, वो आपको उस काम की करने से ना रोकें, वही आपका टैलेंट है। तो लिहाजा आज हमने बैठ के सोचना है, अपने माइंड के अंदर ये ख्याल करना है कि कौन सा काम है प्रोडक्टिव काम, ऐसा काम जिसमें आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट भी हो, सोर्स ऑफ अर्निंग भी बने, आपका प्रोफेशन भी बने। ऐसा काम आप अपने अंदर तलाश करें कि ऐसा कौन सा काम है कि जिसको करते हुए आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, जिसको करते हुए आपको चाहे मौसम सर्दी का हो गर्मी का हो, जैसा भी मौसम हो, धूप में हो छांव में हो, आप करते हुए उससे उकताहट फील नहीं करते, वही आपका टैलेंट है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या मतलब गारंटी होती है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम कैरियर का मतलब हमने कैरियर के लिए प्लानिंग भी बहुत की, फिर भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। तो ऐसे मतलब कितने परसेंट गारंटी हम दे सकते हैं कि अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो हमारा जो है फ्यूचर सक्सेसफुल होगा? जी जी, देखिए मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर से निकलूं और मेरा कोई आगे टारगेट ही ना हो, ऐसे रोड के ऊपर ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दूं और कोई टारगेट सेट ना करूं, सपोज मैंने फैसलाबाद लाहौर या कोई भी इस तरह का टारगेट सेट किए बगैर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दूं, तो क्या कहीं मैं पहुंच पाऊंगा? अगर एक शिप समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहा है और उसके पीछे रडर ना हो जो उसको डायरेक्शन देने वाला हो, जिससे उसको डायरेक्शन मिलती है, जिससे उसकी सिमत मुतय्यन होती है कि कितने डिग्री पे उसने ट्रैवल करते हुए कौन से कंट्री को टच करना है, अगर उसका रडर ही उतार दिया जाए तो वो शिप कहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल कहीं नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो रडर उसको डायरेक्शन देता है। वो ये कैरियर काउंसलिंग इसको डायरेक्शन देती है आपके सक्सेसफुल फ्यूचर की। अक्सर हमारे पेरेंट्स भी और हमारी यूथ भी इन चीजों की तरफ फोकस नहीं करती, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अपने कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ, हम एक डेवलपिंग कंट्री के बाशिंदे हैं। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज का आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें तो वहां कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग बड़ी शॉर्ट टाइम में, थोड़ी सी उम्र में बड़े कामयाब इंसान बन के सामने आते हैं। लेकिन जिन कंट्रीज में ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड अभी सेट नहीं हुआ कैरियर काउंसलिंग का, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी यूथ बड़ी बेचैन है, बड़ी परेशान है, अपनी डिग्री को हासिल करने के बाद भी परेशान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अगर आज मैं आपके सामने ये जस्ट एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कोट करना चाहता हूं, आज अगर देखें पूरी दुनिया के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिहाज से टेक्निकली डोमिनेंट अमेरिका है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया के ऊपर टेक्निकली पूरा उसकी ग्रिप है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे ये वॉरफेयर के जितने भी वेपन्स हैं, सारे उसमें वो फ्रंट रोल परफॉर्म कर रहा है, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा है।
इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पूरी अमेरिका की मईशत को, इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है वो यहूदी लॉबी ने किया हुआ है। इसराइली लॉबी ने पूरी उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। तो मैं एक दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था कि ये जो यहूदी बच्चे होते हैं, ज्यूश जो है चिल्ड्रन है, इनको छोटे लेवल पे इनके साथ कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। अभी ये बच्चा दुनिया में नहीं आता कि इसके पेरेंट्स के साथ, इसकी मदर के साथ ये उसको बता दिया जाता है कि ये बच्चा आज जो इस दुनिया में आएगा, जो आप इस बच्चे को पैदा करने जा रही हैं, तो इस बच्चे को क्या बनाना चाहती है। अगर मदर की तरफ से ये डिमांड है कि मैं इस बच्चे को कामयाब बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ, तो वो उस माँ को बिजनेसमैन लोगों के साथ उसकी तब से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। अगर एक माँ कहे कि मैं अपने बच्चे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, तो उस माँ की काउंसलिंग आर्मी ऑफिसर के साथ स्टार्ट कर दी जाती है। अगर एक माँ कहे कि मैं आने वाले वक्त में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, या कोई इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, या प्रोफेसर बनाना चाहती हूँ, जैसा फ्यूचर डिमांड करती है माँ कि मेरे को ये शिकम से निकलने वाला बच्चा फ्यूचर में ये बने, ऐसे लोगों के साथ उनको काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाती है। ऐसा एक्सपोजर उनको उनकी माओं को देना शुरू कर दिया जाता है। वो एक्चुअल में कहते हैं कि ये एक्सपोजर माँ को नहीं मिल रहा, ये एक्सपोजर बच्चे को भी मिल रहा है। अभी इस दुनिया में नहीं आया स्टार्ट, उसके बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, तो जैसा फ्यूचर डिमांड किया जाता है उस बच्चे से, ऐसे लोगों के साथ उसकी ज्यादा मीटिंग्स करवाई जाती हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में उसको डाला जाता है, इस तरह की स्टोरीज उसको सुनाई जाती हैं, इस तरह की चीजें उसके साथ शेयर की जाती हैं। और फिर वही चीज जिसकी वो डिमांड करती है माँ, स्टार्ट में वही चीज बच्चे के माइंड में पेनिट्रेट करना शुरू कर जाती है, और बच्चे का एप्टीट्यूड उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इस तरह की काउंसलिंग जब आगे आगे बढ़ती है, तो बच्चा बड़े विद इन, हमारे कंट्री में एक डालमिया ये है कि हमारा बच्चा जब मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा, मोस्टली हमारे मास्टर डिग्री होल्डर जिनको जब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, वो टोटल फ्री हो जाते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम्स बनती है, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ज्यूइश बच्चे के साथ एक कंडीशन लगाई जाती है कि कोई भी ज्यूइश बच्चा, उसको मास्टर की डिग्री तब मिलेगी जब वो अपनी डिग्री के साथ $10,000 मंथली पर मंथ अर्न करके देगा, तो तब उसको डिग्री मिलेगी। देखिए, इस तरह की कंडीशंस अगर हमारे साथ भी लॉन्च कर दी जाए, अगर शुरू से ये काउंसलिंग की जाए, तो ये चीज हमारे लिए आगे बड़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। तो उसके साथ ये चीज कंडीशन लॉन्च कर दी जाती है कि वो बच्चा जब तक $10,000 अर्न नहीं करेगा, उसको डिग्री नहीं मिलेगी। लिहाजा उसको बिल्कुल इस दुनिया में आने से पहले उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और वो बच्चा 20 to 22 ईयर्स में एक अच्छा, रिस्पॉन्सिबल, एक हैंडसम, टैलेंटेड सिटीजन बन के एक कामयाब प्रोफेशन के साथ सामने आता है। तो हमारे ये प्रॉब्लम है कि हम इस तरह नहीं कर पाते। फिर उन्होंने उन बच्चों का कंपैरिजन किया, अब उनकी माइंड, मेंटल लेवल का, उनकी मेच्योरिटी का। तो उन्होंने बताया कि ज्यूइश 6 साल का बच्चा, उसका मेच्योरिटी लेवल, अमेरिकन 12 साल का बच्चा, और एशियन 18 साल का बच्चा। हमारे एशिया के अंदर जो बच्चा 18 साल का जाके जो मेच्योरिटी लेवल हासिल करता है, ज्यूइश बच्चा 6 साल का वो मेच्योरिटी लेवल हासिल कर लेता है। हमारा जो जो अमेरिकन 12 साल का बच्चा वो लेवल हासिल करता है, ज्यूइश 6 साल का बच्चा हासिल कर लेता है। मींस कि वो हमसे कितना आगे है। जस्ट इसके पीछे क्या है, कैरियर काउंसलिंग। काउंसलिंग की जाती है, उनको एक्सपोजर दिया जाता है, उनको ये चीजें बताई जाती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान में ना सेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। तो मैं आपके साथ ये बताना, आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, जैसे क्वेश्चन ये था कि क्या गारंटी है कि कैरियर काउंसलिंग आपके ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। अगर ये ट्रेंड हम में सेट कर लिया जाए, अगर ये बात आज से हम स्टार्ट कर दें, हमारे पेरेंट्स स्टार्ट कर दें, हमारी यूथ से स्टार्ट कर दें कि वो अपने कैरियर के बारे में किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ, किसी साइकेट्रिक के साथ, किसी एजुकेशनिस्ट के साथ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ डिस्कस कर ले, उससे थोड़ी सी कोचिंग ले ले, उससे थोड़ी सी गाइडलाइन ले ले, तो ये चीज गारंटी है आपके कामयाब फ्यूचर की। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल कोट्स की हैं, एक ज्यूइश बच्चे की, और एक अमेरिकन बच्चे की, और एक एशियन बच्चे की। तो कैरियर काउंसलिंग ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। सर ये एक और सवाल तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये हमें पता है कि अगर हम कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो किस तरह की, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी फेस फॉर नॉट परसुइंग कैरियर काउंसलिंग, इसके बारे में थोड़ा बता वेरी दें। गुड।
बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें एक जिंदगी दी है, उसी एक जिंदगी में हमें परफॉर्म करना है। अगर हम नहीं परफॉर्म कर पाए, अगर हम प्रॉपरली अपना मुहासबा अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, अपने कैरियर काउंसलिंग नहीं करते, अपने हिडन पोटेंशियल को नहीं जानते, तो हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अगर सही टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे अगर आप काउंसलिंग कर लें, अपने हिडन पोटेंशियल को, टैलेंट को जान लें, सही कैरियर ऑप्ट कर लें, तो आप वेरी शॉर्ट टाइम में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपका टारगेट आपसे दूर होता जाएगा, आपका टारगेट आपसे मुश्किल होता जाएगा, आपका टारगेट अचीव करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी बन के रह जाएगी अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करते। अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करते तो आप अपनी डायरेक्शन से उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे किसी और ऐसे रास्ते पे, किसी गलत बंदे से इंस्पायर होके, जो आप में वो टैलेंट नहीं है, किसी और का टैलेंट आप समझ के उसको फॉलो करते हुए आप उस साइड पे चले जाएंगे। अक्सर हमारे जो यूथ है वो अपना कंपैरिजन करती है, ये मूवीज देखती है, उन मूवीज में जो करेक्टर्स होते हैं उनके साथ अपना कंपैरिजन करती है और उस तरह की जिंदगी चाहती है। देखें, एक मूवी की जिंदगी और एक्चुअल जिंदगी में बड़ा फर्क है। उसमें बहुत सारी चीजें हमें जो होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमसे शेयर नहीं की जाती। अगर हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करेंगे तो वो ये चीज हमें आगे ब्राइट फ्यूचर की गारंटी नहीं देगी। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप मूवीज ना देखें, मूवीज भी सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट है। एडुटेनमेंट, आप न्यू टर्मिनोलॉजी मुझसे सुन रहे होंगे, इससे पहले हमने इंटरटेनमेंट की बात की होगी, इंटरटेनमेंट का वर्ड आपने सुना होगा या आपने एजुकेशन का वर्ड सुना होगा, लेकिन अब न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको कहते हैं एडुटेनमेंट। एडुटेनमेंट का मतलब ये होता है कि आप लर्न करते हैं थ्रू इंटरटेनमेंट। मीन्स कि आप कोई मूवी, कोई ड्रामा या इस तरह का कोई स्क्रिप्ट देखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग भी लेते हैं, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एडुटेनमेंट। मैं आपके साथ एग्जाम्पल कोट करता हूँ, बहुत सारी मूवीज से हम एडुटेनमेंट हासिल करते हैं। हमने तारे जमीन पे देखी, उससे ये सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट बना। हमने पीके देखी, वो एडुटेनमेंट बना। हमने थ्री इडियट्स देखी, वो सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट बना। मीन्स के हमने उससे सीखा। दूसरे नंबर पे देखें, अगर कैरियर काउंसलिंग आप नहीं करेंगे तो आपका टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन पे जाएंगे तो फिर आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल। इवन के कुछ बच्चे सुइसाइड तक चले जाते हैं। सुइसाइड की एग्जांपल हम सब ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए लर्निंग है, उसमें एडुटेनमेंट की सोर्स है। वो ये कि देखें कि उसमें डिफरेंट करेक्टर्स को हमने देखा कि उसमें देखिए आमिर खान का जो करेक्टर है उसमें एक्चुअल में वो दिखाया गया है कि वो एक्चुअल में उसका टैलेंट था, वो अपने टैलेंट पे लगा और लगा करता करता साइंटिस्ट बन गया। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फोर्स करके इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा, और इवन के वो इतने दिल बर्दाश्त हुए कि एक बच्चे ने हमारी आंखों के सामने उस मूवी में हम देखते हैं कि सुसाइड भी किया। ये प्रॉब्लम ये थी कि कैरियर काउंसलिंग ना करने की एक कॉज। अक्सर पेरेंट्स परेशान खुद भी होते हैं और अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं। वो फोर्स कर रहे होते हैं कि जो मैं चाहता हूं वैसा आप बने, हालांकि ये नहीं चेक कर रहे होते कि बच्चा आने वाले वक्त में क्या बन सकता है, इसका एप्टीट्यूड किस साइड पे जा रहा है। उसकी काउंसलिंग नहीं करते, उसकी काउंसलिंग नहीं करवाते, कभी उसकी दिल की राय नहीं लेते, कभी किसी साइकेट्रिक के पास उसको नहीं बिठाते, कभी किसी एजुकेशनिस्ट के पास उसको नहीं बिठाते, कभी किसी लाइफ कोच के साथ उसकी डिस्कशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कैरियर काउंसलिंग आप नहीं करेंगे, आप अपना डिजायर्ड गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे, आपका टारगेट मुश्किल हो जाएगा, आपका टारगेट आपसे दूर हो जाएगा, आपका टारगेट जो है वो अचीव करना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इवन के अगर आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करते और किसी रॉन्ग कैरियर को ऑप्ट कर लेते हैं तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए डिप्रेशन की कॉज बन सकता है, और इस लेवल की डिप्रेशन हो सकती है कि खुदा ना खास्ता बच्चा सुइसाइड तक भी जा सकता है। तो लिहाजा कैरियर काउंसलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू पीपल वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन है कि हम किस चीज़ में लेक कर रहे हैं जिसकी वजह से मतलब हमारी सोसाइटी में कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखें मोस्टली जो प्रॉब्लम ये है
पहले नंबर पे तो ये ट्रेंड हमारे इस कंट्री में, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेंड नहीं है कैरियर काउंसलिंग का। और दूसरे नंबर पे इसमें मैं बड़े ऑनरेबल हैं रिस्पेक्टेड पेरेंट्स जो है, इनको भी देखें, जस्ट बच्चों को ही एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है। उनको भी थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि आप फोर्स मत करें अपने बच्चे को, मजबूर मत करें आप काउंसलिंग करें, आप बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करें, जैसे टैलेंट की बात की थी कि आप चेक करें कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा सोर्स ऑफ अर्निंग वो बच्चा तो उस काम में वो इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी ले रहा है, किस काम को करना उसको अच्छा लगता है, किस काम को करते हुए उसको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। ये इसमें पेरेंट्स एक बहुत बड़ी कॉज हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें फोर्स कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, हम स्पेशली हमारी यूथ में कंसिस्टेंसी की कमी है। वो एक डिसीजन लेती है, वो नहीं हो पाता तो दूसरा डिसीजन ले लेती है, वो नहीं हो पाता तीसरा डिसीजन ले लेती है। देखिए, फर्ज करें मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूं, मैं यहाँ एक गड्ढा खोद के यहाँ से पानी निकालना चाहता हूँ। मैं 10 फीट गड्ढा खोदता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये अर्थ जो है ना, ये जो जमीन है यहाँ से बहुत हार्ड है, मैं इसको छोड़ के साथ में एक और 10 फुट का गड्ढा खोदता हूँ, लेकिन फिर खोदने के बाद कहता नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं निकल पाएगा, एक और 10 फुट का गड्ढा खोदता हूँ। अब देखें, मैंने 3 10 10 फीट के गड्ढे खोद दिए, लेकिन पानी का भी नामो निशान नहीं मिला। अगर मैं उसी गड्ढे पे लगा रहता, उसी को निकालता रहता, 30 फुट 40 फुट हो सकता था वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता। सेम इज द केस विद आवर यूथ। हमारी यूथ के साथ भी ऐसा मामला है कि वो प्रॉपरली इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, अपने हिडन पोटेंशियल को नहीं जानते, एक काम स्टार्ट कर लेते, उसको छोड़ के दूसरा करते, तीसरा करते। आप सोचें, अंडरस्टैंड करें, अपना एनालिसिस करें, अपनी दिल की बात चेक करें, आप चेक करें कि किस काम को करने को आपका सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट बनता है, उस काम का फिर आगाज करें। फिर आगाज करने के बाद कंसिस्टेंसी दिखानी है, फिर डट जाना है, फिर सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। जब आप 2 3 ऑप्शन साथ लेके चलते ना, ये नहीं करूंगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये कर लूंगा, कुछ भी नहीं हो पाता। अब करना नहीं, लाइफ में ना एक बड़ी मजे की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लाइफ में वो काम नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। ये बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आप कहेंगे ये साथ क्या बात करें कि हम लाइफ में वो काम नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। हम लाइफ में वो काम कर सकते हैं जो करना ही चाहते हैं, करना ही चाहते हैं, करना नहीं है, करना ही करना है, बनना नहीं है, बनना ही बनना है। अपने टैलेंट को लेना है और फिर उस पर डट जाना है, कॉन्सिस्टेंसी दिखानी है। फिर देखें, फिर आप अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर सकते हैं। लिहाजा डिसीजन लेना है, सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, काउंसलिंग करनी है, साइकेट्रिक के साथ बैठना है, लाइफ कोच के साथ बैठना है, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ बैठना है, अपना मुहासबा करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपना एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन लेना है, फिर डट जाना है, फिर सेकंड ऑप्शन नहीं दिखाना, फिर डट जाना है, फिर वो काम करना नहीं, करना ही करना है। तो इंशाल्लाह हमारी यूथ बहुत कामयाब हो सकती है। हमारा अगर कंपैरिजन करें ना, पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर दुनिया के बाकी कंट्रीज के साथ, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करके देखें तो हमारे मुल्क में यूथ सबसे 67% यूथ कंट्री है हमारे मुल्क में 67% लोग जो है वो जवान हैं। बाकी कंट्रीज में जवान इतने नहीं है। हमारी यूथ को थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है, हमारी यूथ को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है, हमारी यूथ को थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और सवाल हमारे पास है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन को फॉलो करके पेरेंट्स के बिजनेस को या फैमिली के प्रोफेशन को ही परस्यू करना लाजिम समझा जाता है, तो इसमें पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस भी इन्वॉल्व हो जाती है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें, प्रॉब्लम ये है कि वो अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर और इस तरह ये बनता है। हालांकि प्रॉब्लम ये होती है, इसमें 2 4 चीज़ें होती हैं। इंसान हमें जैसा एक्सपोजर होता है हम वैसा ही काम करते हैं। एक मरतबा ना एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने किसी से सुनी थी कि उसने ना एक मरतबा एक गेस्ट किसी के घर गया तो उन्होंने ना बड़ा अच्छा खाना बनाया, कोई डिश, स्पेसिफिक डिश थी, बड़ी अच्छी बनाई थी। तो उन्होंने कहा बड़ी टेस्टी डिश है, बड़ी माशाल्लाह, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया मैंने डिश को खा के। तो आपने ये डिश कहाँ से बनाना सीखी? उसने कहा ये मैंने अपनी मदर से सीखी। अच्छा, तो वो उनके बड़े क्लोज रिलेटिव थे, वो एक दिन उनकी मदर के पास चले गए, तो उनकी मदर से ने भी सेम डिश बनाई।
तो बड़ी टेस्टी, बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि ये आंटी इतनी टेस्टी डिश आपने कहाँ से बनानी सीखी? उसने कहा मैंने अपनी मदर से सीखी। और लकीली उनकी मदर भी माशाल्लाह भी हयात थी, जिंदा थी। वो उनकी मदर के पास चले गए। उनकी मदर ने भी उनसे उन्होंने डिमांड की कि आप वो वाली डिश आपकी पोती से मैंने नवासी से खाई थी, तो आप काइंडली आप उन्होंने बनाई वही सेम टेस्ट। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने अपनी मदर से सीखी थी। तो ये एक नस्ल दर नस्ल चीज आगे चलती रहती है, वो एक ट्रेंड है हमारे उसमें। लेकिन हो सकता है कि जो जिस नवासी के पास वो बैठा हुआ था, इससे हट के उसको और भी बहुत सारी डिशेज आती हूँ जो उसने खुद से लर्न की हुई हो सकता है वो उसकी उसमें उसकी ज्यादा दिलचस्पी हो। तो हमें ये हमारे पेरेंट्स मोस्टली कहते हैं कि हमारा बच्चा वही काम करे जो मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी मेरे उसी बिजनेस में आ जाए। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बन जाए। हालांकि अगर थोड़ी सी कैरियर काउंसलिंग कर ली जाए, वो एक्चुअल में अपनी कामयाबी का म्यार जानते हैं कि मैं आज इस लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा बच्चा भी इस लेवल पे जाए। आप अपने लेवल पे बच्चे को क्यों लेके जाना चाहते हैं? आप अपने ऊपर, अपने से भी ऊपर लेवल पे लेके जाए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि लाइफ में हम उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा हम सोच सकते हैं। अगर हम मैं अपने वाला काम ही अपने बच्चे को दूंगा, इट मीन्स कि मैंने उसकी सोच को लिमिटेड कर दिया, मैंने उसकी सोच को दबा के रख दिया। मैंने उसको बताया कि बेटा जहां तक मैं पहुंचा हूं, आप यहां से आगाज लें, आप यहां से शुरुआत करें, और जिस एप्टीट्यूड के साथ आप इस दुनिया में आए हैं उस चीज को ऑप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए इससे भी बड़ा करके चले जाए। अक्सर मैं ट्रेनिंग्स में भी लोगों को कहता हूँ कि हाथ ऊपर करें, वो करते, मैं कहता हूँ और ऊपर करें, वो करते, मैं कहता हूँ और ऊपर करें, वो उधर ही करते हैं। फिर एट द एंड में कहता हूँ कि आप लोग और भी ऊपर कर सकते थे। कहते कैसे? मैं क्या, आप अपनी सीट पे खड़े होते तो और भी ऊपर हाथ जा सकता था। हम एक्चुअल में हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, हम कभी भी एक्टिव जोन में हम नहीं आना चाहते। तो हमें कंफर्ट जोन से एक्टिव जोन में आना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये बात एजुकेट करवानी पड़ेगी। पेरेंट्स थोड़े से अपने बच्चों के मामले में ना थोड़े से वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज्यादा ही वो मोहतात अंदाज में फूंक फूंक के स्टेप ले रहे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने अपने बच्चे का प्रोफेशन चेंज किया, अपने प्रोफेशन से किसी और प्रोफेशन में लेके गए, तो कहीं ये नाकाम ना हो जाए, कि ये कहीं वहां जाके हो सकता है कि कहीं वो अपना इसको ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए, या ये किसी और गलत डायरेक्शन पे ना चला जाए। ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, अगर आप थोड़ी सी मोटिवेशन देंगे, अगर आप थोड़ा सा बैकअप करेंगे उसको, अगर सपोर्ट करेंगे, उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक लगाएंगे, तो वो बच्चा आपसे भी आगे निकल सकता है। पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में वो हम बन जाते कुएं के मेंढक। हम कहते हैं कि दुनिया यही है, बस यही सर्कल है, इससे दुनिया आगे नहीं है। उनको बताना पड़ेगा कि दुनिया इससे भी बड़ी वसी है, इससे भी बड़ी दुनिया है, और इससे खूबसूरत दुनिया है, इससे भी बड़े बड़े कारोबार है और खूबसूरत कारोबार है, इससे भी अच्छे अच्छे प्रोफेशन और आउट क्लास प्रोफेशन है। तो लिहाजा थोड़ा सा हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि अपने प्रोफेशन से, अगर आप किसी और प्रोफेशन में बच्चा आपका जाना पसंद करता है तो उसको जाने दें, काउंसलिंग करें। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है उस साइड की साइड पे, टैलेंट उस साइड पे है, तो जाने दें, वो आपसे भी ऊपर चला जाएगा, वो आपसे भी बड़ा कर जाएगा। बिल्कुल सर, सवालात तो हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। एक हमारे पास है कि अगर हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम अगर फॉर सपोज हम कोई रॉन्ग वे से जाते हैं, लाइक सिफारिश करें हम, या अपनी सिफारिश करें लेकिन हम अपना गोल अचीव करें, तो वो चीज़ गलत है, या आपके नज़दीक जी जी, क्या है? देखें बड़ी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। देखें देखें मेरी बात सुने, हर गोल अचीव हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा लीगल वे रहना चाहिए, हमें हमेशा लीगल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सिफारिश को बिल्कुल इग्नोर, अगर आप सिफारिश करेंगे ना तो ये किसी का आप हक तलब कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी हासिल करने वाली जॉब आपके लिए हमेशा वो रॉन्ग सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगी, हराम कमाई बन जाएगी, आपके लिए वो गलत है और आपके बच्चों के लिए भी गलत है। अल्लाह की जात ने हमें इस दुनिया में भेज दिया, मेरा रिज्क मेरे साथ है। अब प्रोफेशन मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं चाहे वो चोरी करके कमाता हूं या मैं किसी और प्रोफेशन को ऑप्ट करके किसी लीगल वे से कमाता हूं, मेरी रिजक, मेरी रोजी मेरे साथ आ चुकी है। और अगर मैं सिफारिश करवा के किसी का हक मार के खाता हूं, फिर भी मेरे हिस्से का रिजक ही मुझे मिलना है, लेकिन वो एक रॉन्ग प्रोसेस के जरिए, एक रॉन्ग एक्टिविटी के जरिए मिलना है। तो मुझे लीगल वे ऑप्ट करना चाहिए, मुझे सीधा रास्ता लेना चाहिए अपने उस जो अल्लाह ताला की जात ने मेरी रोजी दी है, मुझे उसको हासिल करने
अक्सर ये चीजें होती हैं। देखें, मैं आपके सामने एग्जांपल कोट करता हूँ। अल्लाह ताला की जात में जो आपके साथ रिज़्क लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाकया मैंने पढ़ा था बुक के अंदर, सफर कर रहे थे, सफर करते करते रास्ते में नमाज का टाइम हो गया, तो उन्होंने जंगल में से सफर कर रहे थे, सराउंडिंग में देखा इर्द गिर्द में उनको कोई स्पोर्ट, उन दिनों घोड़ों पे सफर किया करते थे, उसके सराउंडिंग में उसको कोई ऐसी स्पोर्ट नजर ना आई जिसके साथ वो अपने घोड़े को बांध के नमाज पढ़ सके। तो उन्होंने इर्द गिर्द में देखा, दूर उनको एक जाता हुआ एक आदमी नजर आया, अल्लाह का बंदा नजर आया। उन्होंने उनको आवाज दी, उनको कहा कि काइंडली आप मेरा घोड़ा पकड़े, मैंने नमाज पढ़नी है, तो बड़ी फेवर होगी, इधर कोई स्पोर्ट नहीं है जिसके साथ मैं उसको बांध सकूं। तो वो अपना घोड़ा उनको थमाते हैं और नमाज शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ने के दौरान उनके दिल में एक रहम आता है कि इस बंदे ने मेरी बड़ी सपोर्ट की है, तो मैं इसको कोई ना कोई इनाम दे के जाऊंगा। अच्छा, वो अभी नमाज खत्म करके सलाम फेरते हैं, देखते हैं ना घोड़ा ना बंदा, बड़ा परेशान होते हैं। वो ढूंढते ढूंढते उनको घोड़ा मिल जाता है, लेकिन घोड़े की लगाम नहीं होती। घोड़े की जो लगाम जिससे वो कैरी करते हैं, उसको घोड़े को डायरेक्शन देते हैं, वो उतार के ले जाता है। अब वो बड़े परेशान, लगाम के बगैर घोड़ा प्रॉपर आगे चल नहीं सकता। तो वो तलाश में निकलते हैं, तो थोड़ी ट्रेवलिंग करने के बाद पास में उनको एक छोटी सी मार्केट नजर आती है, तो उस मार्केट के पास जाते हैं। मार्केट में वो डिफरेंट शॉप्स को विजिट करते करते वहां से वो डिमांड करते हैं कि भाई चलो लगाम मिल जाएगी, लगाम मिल जाएगी। एक शॉप पे पहुंचते हैं, तो शॉप पे एक बंदा बैठा होता है ऐसे ही, हालांकि वो लगाम की शॉप नहीं होती। वो उनसे पूछते हैं कि भाईजान लगाम मिलेगी? कहते लगाम ये बंदा बेचने आया था, मेरे पास लगाम तो नहीं, या इससे मिल जाएगी। वो जब उसके पूछते हैं भाईजान लगाम आप बेचना पसंद करेंगे? कहते ठीक है, तो कितने? कहते 4 दिनार। जब वो 4 दिनार की बात करता है तो फौरी तौर पर उनका माइंड क्लिक करता है, ये तो वही बंदा है जिसको मैंने अपना घोड़ा पकड़ाया था, और नमाज के दौरान ये बात मेरे दिल में आई थी कि मैं इसको कोई ना कोई मदद करके जाऊंगा, और वो 4 दिनार थी जो मैंने इसकी मदद करनी थी। अगर ये थोड़ा सा हौसला कर लेता, अगर ये थोड़ा सा वेट कर लेता, ये 4 दिनार तब भी इसको मिलने थे। लेकिन मिलने कैसे थे? हलाल तरीके से, जायज तरीके से। लेकिन इसने वेट नहीं किया, इसने हौसला नहीं किया। ये 4 दिनार अब भी इसको मिल रहे हैं, लेकिन अब ये इलीगल वे से, हराम तरीके से मिल रहे हैं। देखें, जो चीज हमें मिलनी है वो मिलनी ही मिलनी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी का हक मार के हासिल करते हैं, या हम वेट करते हैं, या हम पूरी तैयारी के साथ परफॉर्म करते हुए कंपटीशन के एग्जाम में, पीपीएससी के या सीएसएस के एग्जाम में, हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के एग्जाम में कंपटीशन में आके मेहनत करके, एफर्ट करके, पोजीशन हासिल करते हैं, या सिफारिश दवा के किसी को कोई रिश्वत दे के हम हासिल करते हैं। जो आपका रिज़्क है, जो आपकी अल्लाह ताला की जात ने आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलना है। अब डिपेंड करता है कि हम उसको लीगल वे से लेते हैं या इलीगल वे से। मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा हौसला दिखाना है, आपके हिस्से का रिज़्क आपको मिलेगा। कभी भी किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए सिफारिश नहीं करवानी, रिश्वत नहीं देनी, आपका हिस्सा आपको मिल के रहेगा, बेहतर मिलेगा। बेशक सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक आखिरी सवाल हम करते हैं से, यूथ ऐसा कर भी ले कि कंसिस्टेंसी दिखाए भी ले, मगर सोसाइटी जो है उनको कैसे फेस करेगी? मतलब हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे अगर हम कंसिस्टेंट हो भी जाए तो? जी जी बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं, बड़ी अच्छी आपने बात की। ये जब हमारे पास कोई डिग्री मिल जाती है, हम अपना जो क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, मुआशरे के लोग हैं, वो भी बड़ा जीने नहीं देते। कभी कुछ यार पढ़ने के बाद अब फ्री हो, ये हो वो हो, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या प्रोफेशन आउट किया, आजकल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी मेन डिप्रेशन की कॉज बन रहा होता है। पेरेंट्स अपनी तरफ से पूछ रहे होते हैं, फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूछ रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स, कजन्स वगैरह अपनी तरफ से पूछ रहे होते हैं, जो डिप्रेशन का कॉज बन रहे होते हैं। अब इन चीजों को कैसे किया जाए? देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें थोड़ा सा हौसला दिखाने की जरूरत है। अल्लाह ताला की जात ने हमें रिज़्क हमारी किस्मत का दे देना है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूँ, एग्जांपल के साथ इस बात को क्लियर करूंगा। एक मर्तबा एक बंदा बड़ा वाइज बंदा, इंटेलेक्चुअल बंदा एक मौलाना साहब के पास जाता है। मौलाना साहब बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े लोगों के ऐसे सवालात के जवाब भी देते हैं जो लोग उलझ के उनके पास आते हैं। वो मौलाना साहब से कहता है कि एक बंदा
बड़ा पैसा लगा के पूरी एफर्ट करके किसी मेन पॉइंट के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो सारा कुछ करने के बावजूद उसका बिजनेस नहीं चलता। एक बच्चा बड़ी एफर्ट करता है, एफएससी में हाईएस्ट मार्क्स गेन करके एम कैट करने के बाद डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इतनी एफर्ट के बावजूद उसका मेरिट नहीं बन पाता, वो डॉक्टर नहीं बन पाता। इसी तरह कहता इंसान की 85% ख्वाहिशात, उसकी डिजायर जायज होती हैं, जिनकी वो कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उनको नहीं कर पाता। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात करता है, कहता तो अल्लाह ताला इंसान के साथ ज्यादती नहीं करता। लेकिन मौलाना साहब बड़े वाइज पर्सन थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की जात इंसान से बहुत प्यार करने वाली है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। अब वो बताता कि कैसे, कहता देखें, अगर एक बच्चा सपोज करें एफएससी करके डॉक्टर बनना चाहता है, वो कहता मैं एफएससी में मेरिट बने एमकेट करूं और डॉक्टर एमबीबीएस बन जाऊं, लेकिन उसका एफएससी में मेरिट नहीं बनता, तो वो फिर थोड़ा सा और एफर्ट ज्यादा करता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है और रिसर्च करता करता साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन वो अल्लाह की जात उसको साइंटिस्ट बनना चाहती होती है, उससे भी ऊपर लेके जाना चाहती है, लेकिन वो एक छोटा सा डॉक्टर बनना चाहता है। इसी तरह वो बिल गेट्स की एग्जांपल कोट करता है। बिल गेट्स हम सबको पता है कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर के बानी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्लास में उसका अक्सर दिल नहीं लगा करता था, क्लास को मिस कर देता था। तो टीचर ने बड़ी वार्निंग दी, इंसान बनो और अपना क्लास को अटेंड किया करो, लेकिन वो क्लास को छोड़ के अक्सर नदी के किनारे बैठता, पत्थर उठाता, नदी के अंदर फेंकता और अपने सोच को बड़ा करता। जैसे मैंने कहा था कि आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। और वो कहता कि एक वक्त आएगा कि आने वाले वक्त में लोग बटन टच किया करेंगे, घंटों के काम मिनटों में और मिनटों के काम सेकंडों में हो जाया करेंगे, और ये सारी चीजें पूरी दुनिया, इधर बैठा हुआ इंसान हजारों मील दूर दूसरे इंसानों से बात कर रहा होगा, तो सराउंडिंग के लोग उसको कहते हैं कि इंसान पागल है, बंदा पागल है। अच्छा, अब वो क्लासेस को अक्सर मिस करता, टीचर्स ने बड़ी वार्निंग दी लेकिन वो इंसान नहीं बना। एक दिन जब क्लास में वापस आया तो टीचर ने उसको क्लास से ड्रॉप आउट कर दिया, उसका स्टक ऑफ मांग किया और उसका कहा कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से दफा हो। तब उसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैं बड़ी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स का सामना कैसे करूंगा कि मुझे यूनिवर्सिटी से ड्रॉप कर दिया गया। वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि सर काइंडली मुझे एक मौका और दे, मैं अभी क्लासेस को मिस नहीं किया करूँ। लेकिन उसने कहा नो, बहुत मौके दे दिया, अब आपको जाना पड़ेगा। रो पड़ता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका टीचर उसको अलाउ नहीं करता। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ इशारा करके कहता आज मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है ना, लेकिन अब मैं इतनी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को, जो मुझ में एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक टैलेंट था, अब मैं वो बनाऊंगा। आज इस यूनिवर्सिटी से मुझे निकाला जा रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा इसी यूनिवर्सिटी को मुझ पे नाज होगा। और वो निकलता है और फिर जाके कंप्यूटर एक मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, एक डॉनर से मिलता है, उसको कहता है कि आप अगर मेरी सपोर्ट करें तो मैं एक ऐसी चीज बनाने जा रहा हूँ जो आने वाले वक्त में आपको अमीर कर देगी। उसने कहा भैया कहाँ से आए? उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे ड्रॉप आउट कर दिया गया। कहते अच्छा, ड्रॉप आउट कर दिया गया, मुझे भी ड्रॉप आउट करवाना है। उसको निकाल देते, कहते नो, हाँ आप हमारे पास नहीं आना। 3-4 लोग इसको इग्नोर करते, 5वां बंदा वो भी थोड़ा सा इस तरह का होता है कि वो इस तरह के लोगों की सपोर्ट करता है। उसने कहा चलो बनाओ सॉफ्टवेयर, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और फिर वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाता है और वो सॉफ्टवेयर कंपनी बनती है, बड़ी कंपनी बनती है, अमेरिका की कंपनी बनती है, अब दुनिया की कंपनी, वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। देखें, इसमें अगर बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ना निकाला जाता तो अपनी डिग्री कंप्लीट करके कोई छोटी मोटी जॉब करता, लेकिन अल्लाह की जात ने उसको दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाना था। एक एफएससी के बच्चे का जिसका मेरिट नहीं बना, अल्लाह की जात ने उसको साइंटिस्ट बनाना था। एक बंदा एक जगह कारोबार नहीं चल सकता, किसी और जगह जाके बहुत बड़ा उसने कारोबारी इंसान बनना था। तो अल्लाह को बेहतर पता है कब कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है। हमें इंसान बुनियादी तौर पर, जैसे मां के सामने एक छोटा बच्चा है ना, सर्दियों में जिद करता है मैंने बर्फ खानी है, छुरी के साथ खेलना है, गाड़ी की छत पे बैठ के जाना, लेकिन माँ उसको अलाउ नहीं करती। सेम इज द केस विद ह्यूमन बीइंग। इंसान के साथ भी ऐसा मामला है। अल्लाह के सामने इस गलत टाइम पे गलत चीज की जिद कर रहा होता है। एफएससी में जिद कर रहा होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन अल्लाह कहता है ना, तुम्हें तो मैंने साइंटिस्ट बनाना है। छोटी जगह एक छोटा सा कारोबार करना चाहता है, अल्लाह कहता है ना, मैंने तुम्हें बड़ा कारोबार करवाना है। एक छोटी सी डिग्री कंप्लीट करके अपने एक छोटा सा जॉब हासिल करना चाहता है, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाना है। तो हमने एफर्ट करनी है, इन चीजों को हमने अपने जो हैं उनको भी कन्विंस करना है, जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताना है कि आप टेंशन न लें मेरी, इंशाल्लाह जो एप्टीट्यूड मेरे में टैलेंट है, जब मैं इस पे लग गया ना, तो एक वक्त आएगा कि ये जितना मैंने टाइम आपके सामने लग रहा है कि इस एज पे अभी तक अर्निंग इसने स्टार्ट नहीं की, मैं इतनी अर्निंग करूंगा, इतनी अर्निंग करूंगा कि जो आपने सारी जिंदगी में की मैं 10 साल में करके दिखा दूंगा। इस तरह से कन्विंस करने की जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ और हमारे इंशाल्लाह देखने वालों को भी काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। सर मेरा एक खुद का पर्सनल सवाल ये है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया था। बैचलर अभी तो मेरा फाइनल सेमेस्टर है, लेकिन अब अगर मैं मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में डेवलप हो जाए या मैं कहीं और जाना चाहूँ, तो ये मतलब क्या अपने गोल से हटना हो गया या फिर इसमें कुछ गलत नहीं है? जी जी, देखें पहले नंबर पे ना दो चीजें हैं इसमें। लाइफ में जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्सिस्टेंट रहने की जरूरत है, कॉन्सिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है। ये अक्सर जो हम लाइफ में सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन होता है, ये हमारे इरादों को कमजोर करता है। अक्सर लोग डिग्री उनके पास होती है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो उस लेवल पे। एक बंदे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एमफिल इंग्लिश किया हुआ है और भी बहुत सारे एमफिल इंग्लिश, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ में एमए इंग्लिश को भी टीच करता हूँ। मैं ट्रेनर ऑफ ट्रेनर भी हूँ, मैं लीड ट्रेनर भी हूँ, मैं लाइफ कोच भी हूँ, मैं एक अदारे का प्रिंसिपल भी हूँ। ये सारी चीजें देखिए, और भी एमफिल लोग होंगे, हो सकता है उनके पास ये सारी चीजें ना हो। डिग्री की वैल्यू बनाना आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी हो सकता है ना दिखाई हो सकता है उनमें फ्रंट पे आने की कैपेबिलिटी कम हो, प्रैक्टिस की कमी हो, वो आगे ना आ सकते हों, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा मेरे ख्याल में मेरा जो मशवरा है कि जब आप एक डिसीजन लें, फिर उस डिसीजन पे कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है। लेकिन अगली बात मैं अब दूसरे एंगल से आपके कैरियर को डिस्कस करता हूँ कि जैसे मैंने आपके सामने बात की थी कि आप हम अपने हिडन टैलेंट को कैसे जान सकते हैं। हिडन टैलेंट को जानने के हमने दो तरीके देखे थे। एक तरीका ये था कि अगर किसी काम को करने में हमें टाइम के गुजरने का, सर्दी का, गर्मी का, वेदर का इम्पैक्ट हम पे ना हो, तो वही हमारा टैलेंट है। तो आप अगर चेक करें कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी ये हेडेक लगती है, डिप्रेशन लगती है, हेक्टिक एक्टिविटीज लगती हैं, तो फिर ये आपका टैलेंट नहीं है। फिर आपका डिसीजन ठीक है अगर इसमें से हट के किसी जो वो टैलेंट आउट करें जिसमें आप जो सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट आपके लिए बनता है, जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनता है, जिसमें आपका वक्त की गुजरने का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर लेकिन अगर इस काम में करने में आप इंजॉय करती हैं, आपको वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, तो फिर आप कंसिस्टेंसी दिखाएं। लाइफ में इंसान का मोटिवेशन लेवल कभी बहुत ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये चीज चलती है, इंसान है हम। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। अगर कभी कभी मोटिवेशन लेवल नीचे भी आएगा तो कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। थोड़ा लीनियंट तो बंदा हो जाता है, प्रोग्रेस आपकी स्लो हो जाती है, स्लो हो जाए लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो आपके सामने मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। अगर तो ये आपको ऐसा लग फील हो रहा है कि हो सकता है कि किसी ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, किसी पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया हो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, अगर आप उनके कहने पे आई हैं और अब इसको आप एक हेक्टिक एक्टिविटी अपने लिए ख्याल करें, तो फिर आप चेंज करें। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से, आपके दिल की आवाज थी, आपको लगता था कि ये काम करना मेरे लिए सोर्स ऑफ एडुटेनमेंट है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ लर्निंग है, अगर आपने लिया था, तो अब अगर थोड़ा सा मोरल या मोटिवेशन लेवल नीचे है तो इसमें आप थोड़ा सा और फोकस करें तो इंशाल्लाह ऊपर चली जाएंगी। लेकिन अगर डिप्रेशन की कॉज बन रहा है, अगर मजा नहीं आ रहा करने का, वो किक नहीं मिल रही, एक्साइटमेंट नहीं है इसमें, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें से ऑप्शन को आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन अब जो भी फिर डिसीजन लें, बार बार डिसीजन नहीं चेंज करना, एक बार सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बाज का लाइफ में हम ऐसे कैजुअल से डिसीजन लेते हैं। हमारे कायद मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि डिसीजन जब आप ले लें, फिर डिसीजन को साबित करें कि मैंने ठीक डिसीजन लिया। ये नहीं कि आगे डिसीजन लें और खुद से कहें कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। 100 बार सोचें, जब डिसीजन ले लें तो फिर साबित करें कि डिसीजन ठीक है। अब आपके सामने मैंने दो ऑप्शन दे दिए थे, आप देखें कि अगर तो ये आपने अपनी मर्जी से लिया था तो इसको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। अगर किसी और के से इंस्पायर होकर या किसी और की मोटिवेशन से लिया था और अब आपके लिए हेक्टिक एक्टिविटी बनती जा रही है, तो फिर आप चेंज करें, बिल्कुल चेंज करें। फिर आप उस लाइन पे आए जिसमें आपको वक्त के गुजरने का या गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। मेरा विजन क्लियर कर दिया आपने। एक्चुअली मैंने खुद ही चूज किया था, लेकिन फिर जाहिर है बीच में थोड़ी मोटिवेशन कम हो गई, लॉकडाउन की वजह से भी काफी इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन अब क्लियर हो गया कि बस अब आगे भी इसी फील्ड में ही कंटिन्यू करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेरी गुड। आपके लिए सर मैं एक वेलकम। कोट करना चाहूंगी।
We cannot always build the future for youth, but we can build our youth for the future. और सर आप यही Correct. काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बिल्कुल, आपका, और आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और कमेंट्स भी आपके लिए आए हुए सबको, मतलब आपका सेशन काफी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी दोबारा आपसे ही फायदा हासिल करना चाहेंगे जरूर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बिल्कुल, वेलकम, आप सर वेलकम। मीटिंग नोट देना चाहें स्टूडेंट्स को, सबको, इंक्लूडिंग मी? जी, जी, बिल्कुल। देखें, आप सबके लिए मैं यही फाइनल कमेंट करना चाहूँगा कि हम उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा हम सोच सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना है। देखें, अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अंदर की आवाज़ को जानना। मैं आपके सामने एग्जांपल कोट करता हूँ। बेसिकली आपने भी गाय का बछड़ा देखा होगा। गाय का बछड़ा जब छोटा होता है ना, बड़ा नॉटी होता है। उसको अगर उसको प्रॉपरली शुरू में जो रोप है, जो चेन है, जो रस्सी है, उसकी टांग पे डाली जाती है, गले में नहीं डाली जाती। गले में इसलिए नहीं डाली जाती कि उसका मोटिवेशन लेवल, उसका थ्रिल बहुत हाई होता है, पोटेंशियल बहुत हाई होता है। वो अगर उसकी रस्सी हमारे हाथ से निकल जाए तो बड़ी स्पीड में भागता है। अब फिर रस्सी को किसी स्पोर्ट के साथ बांधा जाता है तो वो अंदर से आवाज उसको आती है कि तुम ये रस्सी को तोड़ सकते हो। वो झटके लगाता है, रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है। पहले दिन झटके लगाता रहता, सारा दिन झटके लगाता है, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ सकता। गले में इसलिए डाली जाती है कि अगर झटके ले ले, ज्यादा झटके लगाएगा तो फंदा आ सकता है उसको। पहले दिन कोशिश करता, रस्सी नहीं टूटती। दूसरे दिन फिर कोशिश करता, रस्सी नहीं टूटती। तीसरे दिन झटके कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर से आवाज आने लग जाती है कि आप इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। चौथे दिन और कम करता है, और पांचवें दिन झटके लगाने बंद कर देता है। और आपने देखा, हमने देखा कि वही रस्सी उतार के फिर उसके गले में डाल दी जाती है, और फिर सारी जिंदगी के लिए गले में डाल दी जाती है। ऐसा ही मामला इंसान के साथ है कि अगर खुदा ना खास्ता अंदर से ये आवाज आने लग जाए ना कि आप नहीं कर सकते, तो फिर वो चीज, वो मुश्किलात हमारे गले का हार बन के रह जाती है। लेकिन अगर अंदर से आवाज आए कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो लिहाजा अंदर की आवाज सुननी है, अंदर से मोटिवेट होना है। अंदर से जब आपको करने की आवाज आएगी कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। आप सब कुछ कर सकते हो, बस कॉन्सिस्टेंट रहना है, सोच को बड़ा रखना है, और अपने अंदर को पहचानना बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और सब व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज।